A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, we discussed a very important chapter, the chapter number 1 of part A, that is a not-for-profit organization. In the last few videos, we almost discussed all the theoretical topics related to the not-for-profit organization, like what is the meaning of not-for-profit organization, what are the features of the not-for-profit organization, and uh, which types of account and statement are included in the financial statement of NPO. And you know very well, there are basically three statements are included in the NPO. The first one is a receipts and payment account, second is a income and expenditure account, and third one is a balance sheet. Okay, so in the last few video we already discussed how NPO prepare its receipts and payment account, income and expenditure account, and as well as we discussed a very important numerical problem related to the cash flow statement. So in this video, first of all, we discussed the very important topic, that is few important items related to the not-for-profit organization, like a subscription, and how NPO shows the subscription in its financial statement. जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है वो एनपीओ का होता है सब्सक्रिप्शन. सो आज के इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, हाउ कंपनी रिकॉर्ड द सब्सक्रिप्शन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी किस तरह से अपने सब्सक्रिप्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करती है, एंड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन. Basically, it is very important how company shows the subscription received in the income and expenditure account and the balance sheet of the firm. It means the not-for-profit organization. And thereafter, we will discuss the very important topic related to the cash flow statement. So in this video, इसके वीडियो के दो पार्ट हैं basically. In the first part, we discuss the subscription, very important adjustment of NPO, that is a subscription, and thereafter we will discuss the very important numerical problem related to the cash flow statement and the theoretical concept of proposed dividend according to AS4. यानी इस पूरे वीडियो में पहले हम लोग एक एनपीओ का एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो का एक क्वेश्चन which was already asked in the examination according to the CBSE question paper, as well as thereafter we discuss the very important adjustment of cash flow statement, that is the proposed dividend according to AS4. And what is the name of AS4? Contingencies and events occurring after the balance sheet date. So let us start today's video. So as you know very well, not for profit organization की सबसे बड़ी और सबसे important source of income होती है, that is a subscription. So company उस subscription को कैसे deal करती है? So first of all, please note down in your copy what is a subscription. Okay, so the subscription are usually received, you know very well, subscription का मतलब होता है basically चंदा. जब भी कोई एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस करता है तो बेसिकली उसका पूरी डिपेंडेंसी, पूरी रेवेन्यू का जो बेस पॉइंट होता है विच इज अ सब्सक्रिप्शन. सो सब्सक्रिप्शन is an amount, it is an amount received from its members from its member by नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. यानी ये कैसी अमाउंट होती है जो एनपीओ अपने मेंबर से क्या करती है, एनपीओ जो होती है अपने मेंबर से रिकवर करती है. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनपीओ से रिलेटेड वो ये है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यू नो वेरी वेल, फॉर एनपीओ. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दैट्स व्हाई इट विल records
in two financial statements. The first one, the debit side of receipts and payment account, and credit side of income and expenditure account. ओके, सो सब्सक्रिप्शन का जो रिकॉर्डिंग होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। किसको रिकॉर्ड किया जाता है, सब्सक्रिप्शन को। ओके, एंड यू नो वेरी वेल देयर आर अदर काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन विच आर ऑलरेडी एडजस्ट विद द सब्सक्रिप्शन। यानी सब्सक्रिप्शन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया और क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिख दिया। बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन सम टाइम्स ऑफ द मेंबर सब्सक्रिप्शन कुड नॉट पे इन द करंट ईयर। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरा सब्सक्रिप्शन की वैल्यू करंट ईयर में पे नहीं करते हैं, एंड सम टाइम्स कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू एडवांस में दे देते हैं। That's why subscription का adjustment is a very important for the NPO. It is a very important for the NPO, that is a not for profit organization. So that's why you know very well in the income and expenditure account, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की वही वैल्यू शो करते हैं जो कि करंट ईयर की से रिलेटेड होती है। प्लीज लिसन केयरफुली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में only those value of subscription will be recorded which are related to the current year. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू। यानी इनकम मैनेजमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन की वही वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है जो करंट ईयर से रिलेट होती है, और जो एडवांस हो और जो प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग हो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओनली अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Whereas if we are talking about the receipts and payment account in debit side, so in this situation we record all the years incomes received through the subscription। यानी कि receipts and payment account के debit side में हम previous year से अगर कोई सब्सक्रिप्शन के वैल्यू मिली हो, यानी प्रीवियस ईयर की वैल्यू सब्सक्रिप्शन की कोई वैल्यू रिसीव्ड हो, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कोई रिसीव्ड हो, या फिर नेक्स्ट ईयर का कोई वैल्यू रिसीव्ड हो, सो अगर सब्सक्रिप्शन हमें मिला है चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, इट मींस all the incomes received through the subscription account, whether it is related to the past year, previous year, whether it is related to the current year, and whether it is related to the next year, all the amount received through the subscription, it will be recorded in the debit side of the receipts and payment account। जनरली एग्जामिनेशन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन कर दिया जाता है जिसमें सब्सक्रिप्शन की सारी वैल्यू गिवन होती है, करंट ईयर की भी, नेक्स्ट ईयर की और प्रीवियस ईयर की भी। सो आपको उसमें से सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन की वैल्यू लेनी है जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, बिकॉज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू ही जाती है। सो debit receipts and payment account record the amount of the subscription, all the amount of the subscription, whether it is received to the past year, present year or future year। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का होता है, कुछ एडवांस प्रीवियस ईयर का होता है। उसी तरह से सम ऑफ द अमाउंट विच आर रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग एट द करेंट ईयर एंड एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। लिसन केयरफुली। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट कुछ आउटस्टैंडिंग ऐसा होता है पैसा जो अभी भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। नंबर टू, कुछ एडवांसेस ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ही हमको मिल जाते हैं करंट ईयर के लिए, और उसी तरह से करंट ईयर में भी कुछ एडवांसेस हमको मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, और करंट ईयर में भी ऐसा जरूरी नहीं कि सारे मेंबर्स हमें पूरा पेमेंट कर दें। दैट्स वाई सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट काफी जरूरी होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन which are related to the current year। So in this situation we have to prepare a adjustment table to calculate the amount shown in the credit side of the income and expenditure account। So how we will calculate it? Okay, so उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज take in your mind, please record in your copy properly। First of all, the
take the total subscription received during the year. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, कितना हमें वैल्यू रिसीव्ड हुआ. देयर आफ्टर वी एड इन इट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यानी कि करेंट ईयर में कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो, करेंट ईयर में कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, so it will be added in it. Thereafter we deduct the advance subscription at the end. अगर करंट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर में कोई भी सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस मिला हो, लिसन केयरफुली, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड मींस करंट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, करंट ईयर में कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन मिला हो जो एडवांस हो, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. नंबर थर्ड, देयर आफ्टर वी एड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग. हो सकता है पास्ट ईयर में भी कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन हो जो हमें एडवांस मिले हो, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे. एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, इट मींस इट विल बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर. इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे एट द लास्ट, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग. हो सकता है प्रीवियस ईयर में भी कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन होगा, कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन की वैल्यू होगी जो भी आउटस्टैंडिंग होगी, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग. यानी प्रीवियस ईयर में भी कोई सब्सक्रिप्शन ऐसा होगा जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, स्टिल आउटस्टैंडिंग, सो इट विल बी डिडक्ट. सो नाउ वी विल गेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन credited in income and expenditure account. सो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी. ओके, इट इज क्लियर, आई होप. So you can see that how come NPO calculate the amount of subscription credited in the income and expenditure account, and this value shown in the debit side of receipts and payment account. ये जो वैल्यू है ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की किस साइड शो होगी डेबिट साइड में. दिस वैल्यू विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड जो ये सारे एडजस्टमेंट किए गए, जैसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, एडवांस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, इनके भी सेपरेटली एडजस्टमेंट किए गए हैं. क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे, प्लीज वन बाय वन प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है, so it will be shown in the asset side of balance sheet. इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे. It will be shown as the liability side of the balance sheet. And you know very well, these two values will be related to the previous year. ये दोनों वैल्यू किससे रिलेट हो रही है, प्रीवियस ईयर. दैट्स व्हाई ये दोनों ही चीजें करंट की बैलेंस शीट में शो नहीं होगी. इट मींस करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, इट विल बी शोन इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट. और एनपीओ में जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होती है उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट. इट विल बी says as the opening balance sheet. So that's why advance subscription at the beginning will be shown in the liability side of opening balance sheet, and outstanding subscription at the beginning it will be shown in the assets side of opening balance sheet. So I hope it is clear for you कि पहले तो हमें ये निकालना बहुत जरूरी है कि how we will calculate the amount credited in the income expenditure account as a subscription, how we will calculate which amount is to be debited in the receipts and payment account, and how we will prepare the balance sheet, either it is the opening balance sheet or closing balance sheet, through the various adjustments. As you can see that outstanding subscription, advance subscription, outstanding subscription is the asset, advance subscription is a liability. Okay, end से relate है, so it will be recorded in the current year balance sheet. beginning से related, that is the previous year से, so it will be recorded in the previous year balance sheet, that is the opening balance sheet. Okay, so let's see move to the next part of this video, that is a practical problem related to the cash flow statement, and thereafter we will move to the
very important topic of cash flow statement, that is a proposed dividend. Okay, so let's we move it. Question, the next question is question number 30. As you can see that on your screen, Sony Limited provides you the following information, and the information are and as well as you have to calculate the cash flow from financing activity. आपको निकालना है cash flow from financing activity. 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है. 2018 is the current year, 2017 is the previous year. First is equity share capital, 12,50,000 for the current year and 10 lakh for the previous year. 8% preference share capital, current year 2 lakh, previous year 0. 10% debenture, previous year 3 lakh, current year 0. इन्वेस्टमेंट इज शेयर 1,50,000 एंड 1 लाख. तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिखा है 1,50,000 करंट है और प्रीवियस ईयर 1 लाख, और ऊपर कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया इन्वेस्टमेंट इन शेयर. अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो नाम ही क्लियर है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. दैट्स वाई हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट इन शेयर को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे. इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो होगा 50,000, बट इसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे. सर बहुत बड़ी चीज पता चल गई हमको. नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर को कैश फ्लो के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देते, इशू ऑफ शेयर 50,000. ओके, द नेक्स्ट थिंग is additional information number 1. The additional information number 1 is during the year 17-18 Sony Limited issued bonus share in the ratio of 4:1 by capitalizing reserve. बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को. 17-18 का जो ईयर है उसमें कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया. बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, फ्री का शेयर. यानी बोनस शेयर इशू करने से कंपनी को एक भी रुपए इनफ्लो नहीं होता है कैश का. कंपनी के जेब में एक रुपए भी नहीं आता. जब कंपनी के जेब में एक रुपए भी नहीं आएगा तो कंपनी कैश को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेगी? नहीं करेगी. इसमें रेशियो क्या बोला है, 4:1. 4:1 का मतलब समझ लीजिए, यहां पर हर 4 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिलेगा. बोनस शेयर देने का तरीका ये होता है कि कंपनी उसके लिए डिसाइड करती है प्रपोर्शन. 4:1 का मतलब है कि एवरी 4 शेयर कंपनी इशू द बोनस शेयर ऑफ 1. कंपनी इशू 1 बोनस शेयर. यानी अगर कंपनी आपके पास 4 शेयर है तो कंपनी आपको एक फ्री का शेयर देगी, यानी अब आपका शेयर हो जाएगा 5. अब वो जो 4 से 5 शेयर हुआ है ना, उसके लिए कंपनी आपसे 0 रुपए लेगी, यानी 1 रुपए भी नहीं देगी. तो अब आप खुद देख लो, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो पहले कितना था, 10 लाख. अब कितना हो गया, 12,50,000. तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना शेयर इशू कर दिया, 2,50,000. अब आपको पता करना होगा कि इस 2,50,000 में कितना बोनस शेयर है और कितना नॉर्मल शेयर है, क्योंकि बोनस शेयर को हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इंक्लूड नहीं करते हैं. यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी. सो कंपनी ने कितना शेयर बोनस इशू किया, आप खुद देख लो. कंपनी के पास शुरू में शेयर कितना था, कंपनी के पास, आप पहले निकालो नंबर ऑफ इशू बोनस शेयर. कंपनी के पास स्टार्टिंग में था 10 लाख रुपए का शेयर. हर 4 शेयर पे कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, बोनस 1. 4:1 का मतलब क्या होता है, एवरी 4 शेयर पे कंपनी एक बोनस इशू कर रही है. तो 10 लाख रुपीस के शेयर हैं, 4 रुपीस का 4 शेयर पे एक शेयर है, तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 2,50,000. अब आप खुद देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, 10 लाख, अब हो गया 12,50,000. यानी जो इशू शेयर हुआ है 2,50,000, ऑल द शेयर इज बोनस शेयर. पूरा का पूरा शेयर क्या है, बोनस शेयर. इसका मतलब इसे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे. वही बात है 8% प्रेफरेंस शेयर की. तो पहले प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 0 थी, अब कितनी हो गई, 2 लाख. तो इट विल बी टेकन एज द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख. इज दैट क्लियर? 10% डिवेंचर में फोकस करते हैं, क्या लिखा हुआ है,
3 लाख डैश। 3 लाख डैश का मतलब क्या है? पहले डिबेंचर कितने का था? 3 लाख का। अब कितना हो गया? जीरो। यानी आपने पूरा का पूरा डिबेंचर कितने का रिडीम कर दिया? 3 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम कर दिया। तो आपने रिडम्पशन किया 10% डिबेंचर, कितना? पूरा का पूरा 3 लाख रुपए का। ठीक, और नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया हुआ है, ऑन 10% डिबेंचर वे रिडीम ऑन 1 जनवरी 2018 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडम्पशन किस पे हुआ है? 5% पे, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो 3 लाख का 5% कितना आएगा? 15,000। सो रिडम्पशन की वैल्यू कितनी होगी? 3,15,000। कब रिडम्पशन किया है? 1 जनवरी 2018। कब रिडम्पशन किया है? 1 जनवरी 2018 में आपने क्या किया है? रिडम्पशन। इज दैट क्लियर? हाँ सर, 1 जनवरी 2018 को रिडम्पशन किया है, इसका मतलब आपने 17-18 के बीच में रिडम्पशन किया है। तो रिडम्पशन कब किया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद आपने रिडम्पशन किया है। तो जब भी आप 9 महीने के बाद रिडम्पशन अगर आपने किया है, इसका मतलब ये है कि आपको उस डिवेंचर पे 9 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिवेंचर। कितने का डिवेंचर था? 3 लाख का। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। अब कितने महीने का आपको इंटरेस्ट देना है? दैट इज अ 9 मंथ। तो ये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट मुझे आएगा 30,000 22,500 अप्रोक्सीमेटली आएगा द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 9 मंथ। प्रेफरेंस डिविडेंड क्लियर दिया 8,000, उसको माइनस करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर कंफ्यूज कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 4, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे। आप इन्वेस्ट करते हो तब तो डिविडेंड रिसीव होता है। तो डिविडेंड रिसीव का क्या एडजस्टमेंट मैंने बताया था? डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग, डिविडेंड रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग। इट मींस इन्वेस्टमेंट इन शेयर हो चाहे डिविडेंड रिसीव हुआ हो, both are the part of the investing activities. It does not include the cash flow from financing activity. So let's we move to the whole solution. मैंने आपको वर्किंग नोट्स बता दिए, अब इसके पूरे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द कितने शेयर बोनस शेयर हमने इशू किए। 10 लाख पे हर 4 पे 1 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 2,50,000 के बोनस शेयर इशू कर दिए। डिबेंचर को रिडीम करना है 10% पे, तो 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का रिडम्पशन हो गया, उस पर 5% प्रीमियम है तो 15,000, यानी अपने टोटली रिडम्पशन कितने का क्या है? 15,000। रिडम्पशन कब किया डिबेंचर का? 1 जनवरी को, यानी 9 महीने बाद। तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर पे कितना? 22,500। ओके, आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 22,500 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसको हम प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो पहले हम लोगों ने क्या इशू किया? बोनस शेयर। कितने का बोनस शेयर इशू किया है? 2,50,000 रुपए का। तो देखो दो ऑप्शन है, या तो यहां लिख दो इशू ऑफ बोनस शेयर, बता दो कि आप तेज हो, एग्जामिनर को बता दो कि आपको सब कुछ पता है, और अमाउंट में लिख दो नील, और ब्रैकेट में लो इशू ऑफ बोनस शेयर ₹2,50,000। तो उसको भी पता चल जाए कि आपको पता है कि कंपनी ने 2,50,000 के बोनस शेयर इशू किए, और अमाउंट में लिख दो नील। क्यों? क्योंकि उसको बोनस शेयर को इशू करने से 1 रुपए भी नहीं आता कंपनी के पास, तो ये कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं होगा, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या कहीं भी नहीं होगा। खुद ही सोचो, पैसा ही नहीं आ रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ही ये कि कैश आए जाए तभी रिकॉर्ड करना है। बोनस शेयर इशू करने से कंपनी के जेब में 1 रुपया नहीं आता है तो क्या मतलब है? ठीक, अब दूसरी बात उसमें क्या था? नंबर सेकंड इज, सो आपने बोनस शेयर इशू किया, उसकी कोई वैल्यू कंसिडर नहीं की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, तो उसको कंसिडर करेंगे। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया था आपने? यू हैव टू इशू द प्रेफरेंस शेयर, दैट इज 2 लाख।
आपके पास क्वेश्चन होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट, आपने डिबेंचर को रिडम्पशन किया था, तो रिडम्पशन ऑफ 10% debenture, and what is the amount of redemption value? That is 3,15,000, and it will be taken as the outflow from the financing activity. Thereafter, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, मैंने आपको क्लियरली बताया इन्वेस्टमेंट शेयर कसम खा लो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग में मत लिख के आ जाना, नहीं तो एग्जाम में मिलेगा जीरो। फिर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, 22,500, ये भी कंसिडर कर लो। इंटरेस्ट पेड लिखना होगा पूरा डिबेंचर पे, 22,500 ये आउटफ्लो है। और आपने क्या क्या पे किया, डिविडेंड पे किया है, किस पे, प्रेफरेंस शेयर पे। डिविडेंड पेड हुआ आपका किस पे, प्रेफरेंस शेयर पे, दैट इज 8,000, ये गिवन है क्वेश्चन में, आप देखना। और आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, बट यू नो वेरी वेल, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, डिविडेंड रिसीव्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट विल नॉट इंक्लूड इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसमें ऐड और लेस कर लो, फाइनली ये आंसर आपका आएगा, द आंसर इज 1,45,500। आई होप द आंसर इज करेक्ट, 1,45,500 इन नेगेटिव। एंड जब भी आंसर नेगेटिव में आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, बोली व्हाट इज प्रपोज्ड डिविडेंड and what are the adjustment of the proposed dividend? Basically proposed dividend क्या होता है, proposed dividend are categorized according to the AS4, because you know very well हम cash flow बनाते हैं according to the AS3 revised, उसके बाद आता है हमारा AS4। AS4 ये बताता है contingencies and events occurring after the balance sheet date। क्या नेम है proposed dividend का, proposed dividend के AS का नाम है AS4, contingencies and events occurring after the बैलेंस शीट डेट। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ डिक्लेरेशन ऐसे होते हैं जो कि बैलेंस शीट बनाने के बाद ऑकर होते हैं, जैसे इसमें नाम ही है कॉन्टीजेंसीज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन द इमेज, कि जो प्रपोज डिविडेंड है उसको हम डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द AS4 revised, the name is contingencies and events occurring after the balance sheet date। यानी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्टीजेंसीज ऐसी होती है जो बैलेंस शीट बनाने तक नहीं होती, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के बाद हो सकती है। क्या होता है सर इसका मतलब, देखो बेसिकली प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है वो डिविडेंड जो कि प्रपोज किया जाता है इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कंपनी क्या करती है, हर साल बैलेंस शीट बनने के बाद, ना कि बनने के पहले, ध्यान से समझना, बैलेंस शीट बनने के बाद कंपनी क्या करती है, मीटिंग बुलाती है, दैट इज नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें प्रपोज किया जाता है कि हम इस साल इतना आपको डिविडेंड देंगे। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ऑन शेयर। और प्रॉफिट ऑन शेयर कब पता चलेगा, जब सब कुछ बन जाएगा, टैक्स पे हो जाएगा, इंटरेस्ट पे हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर पे हो जाएगा, तब ना प्रपोज डिविडेंड देंगे। नाम ही है प्रपोज डिविडेंड, यानी वो डिविडेंड जो भी प्रपोज्ड है, प्रपोजल रखा गया है। So you can see that proposed dividend is not provided in the books, but it is shown in the notes to account as a contingent liability. Proposed dividend books of account में include नहीं करते, इसे हम as a contingent liability। contingent liability क्या होती है, 11th में पढ़ा है clearly, वो liability जो भी certain नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपके ऊपर एक liability create हो जाए। So it will not appear as a short term provision on the liability side of the balance sheet। ये लाइन याद रखना, पहले यही होता था। जब 2019 के पहले प्रपोज डिविडेंड को शॉर्ट टर्म प्रोविजन माना जाता था। 2019 के सिलेबस के पहले, अगर उसके पहले के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, पहले के आपको सीनियर्स मिलेंगे, तो आपको यही बताएंगे कि प्रपोज डिविडेंड इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ द सीबीएसई, प्रपोज डिविडेंड को अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बना दिया गया, यानी बैलेंस शीट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसको किसमें दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखता, लायबिलिटी की किसमें, करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में आता है दो चीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं, यानी बैलेंस शीट के अंदर दिखता प्रपोज डिविडेंड। अब कहां दिखेगा, बाहर दिखेगा।
क्या मानेंगे? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मानेंगे, यानी कि आपको अपने मन में याद रखना है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाइवा। लास्ट ईयर वाइवा में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट से, बच्चों से टीचर ने यही पूछा था, मैंने भी यही पूछा था, व्हाट इज द रूल ऑफ द रिवाइज्ड AS4। तो रूल यही है कि अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ऑफ AS4, it is known as the contingencies and events occurring after the balance sheet date. Balance sheet is not provided in the books, but it is shown as the notes to account as contingent liability. It is not included in the short term provision on the liability side of the company. यानी इसे हम लाइबिलिटी में शो नहीं करते, इसे बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट बहुत इजी है, आप एक डायग्राम से समझ लो। आपको बस ये स्पेशल लाइन आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, सो व्हाट आर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड? देखो बेसिकली अगर क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को कह रहा है और नीचे वर्किंग नोट में लिख दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड, नोट्स टू अकाउंट में लिख दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड के जनरली दो बैलेंसेस गिवन होंगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, करंट ईयर का बैलेंस होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर की वैल्यू गिवन होगी। तो आपको करंट ईयर से कोई मतलब ही नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर का ही दो एडजस्टमेंट करना है, यानी करंट ईयर की वैल्यू को इग्नोर कर देना, इसको आप इग्नोर इट। आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यू में ही क्या करना है, इसको जाकर ऐड कर देना है, इस वैल्यू को ऐड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में। यानी अगर कोई प्रॉफिट अगर हम बैलेंस शीट से लिए हैं तो वो कैसी प्रॉफिट होती है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर पीएल से ले रहे हैं तो उसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट तो होता नहीं है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो उसमें ऐड कर देना है, और लेस कहां से कर देना है? यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसका दो एडजस्टमेंट करना है, करंट ईयर को इग्नोर, प्रीवियस ईयर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर देंगे। यानी अगर प्रॉफिट हम बैलेंस शीट से लेंगे तो प्रपोज डिविडेंड की प्रीवियस ईयर की वैल्यू को ऐड कर देंगे, और करंट और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से इस वैल्यू को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, यानी डिडक्ट कर देंगे। करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।